Good morning, student. We will start the topic reduction of inequality and poverty. Before starting this topic, let us see one data here. Inequality of income in selected countries. Here there are some countries: South Africa, Brazil, Russia, USA, United Kingdom, Denmark and Hungary. We are seeing the percentage share of national income. टॉप 20% लोगों के पास साउथ अफ्रीका में 64.8% रिसोर्सेस, और जबकि बॉटम 20% में के पास केवल 2.9% नेशनल इनकम का शेयर है. सो इट इज़ हियर वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन साउथ अफ्रीका एंड इन ब्राज़ील more than 60% people, more than 16% people are there. Those not more than 60% national income are along with 20% people at the top most. So जो 20% लोग हैं, ऊपर से 20% लोग हैं, उनके पास 60% से ज़्यादा इनकम है, नेशनल इनकम है. तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी शो करता है. एंड although we are observing that in Denmark and Hungary the situation is quite better. Now let us see in general what is the situation of economic inequality in democratic country. Reduction of inequality and poverty. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. In the previous topic, we have seen that in the matter of economic growth, democracy is lagging with respect to dictatorship. But in the matter of reduction of inequality, means गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है उसको कम करना. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा रिसोर्सेस हो जाए और कुछ लोगों के पास बहुत ही कम रिसोर्सेस हो. तो उनका बंटवारा कैसा हो, बंटवारे में डेमोक्रेसी कहाँ तक सक्सेस होती है, इसको हम लोग इस पर बात कर रहे हैं. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. जो आर्थिक रूप से विभिन्नताएं हैं उनको कम करें. Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है, इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या जो संसाधन है, क्या जो मनी है, रिसोर्सेस है, वो क्या इस तरह से बटेगा कि सबको बेहतर मिल सके, सबको इतना मिल सके कि वो डिसेंट लाइफ जी सके. इस इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी accompanied by increased inequality among the people, or do democracy lead to a just distribution of goods and opportunities? Democracy are based on political equality. डेमोक्रेसी इसकी कोई गारंटी नहीं देता जो कि रिसोर्सेस कैसे बटे, किन के पास कितना जाए. डेमोक्रेसी केवल और केवल एक शासन की पद्धति है जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं. डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेटेज इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. यह पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है और सबको बराबर का अधिकार देता है. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ bringing individual into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. Parallel to the process of bringing
individual into political arena on an equal footing, we find growing economic inequality. आर्थिक रूप से इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र में राजनैतिक रूप से एक समानता मिलती है, सबको वोटिंग राइट दिया जाता है, सबकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद हम पाते हैं पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनइक्वालिटी इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग। पॉलिटिकल एरिना में हम बराबर देते हैं, लेकिन वी फाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ इनइक्वालिटी, लेकिन आर्थिक रूप से विषमता बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन चला जाता है, कुछ लोगों के पास कम चला जाता है। ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय ए हाई A small number of ultra-rich enjoy a higher disproportionate share of wealth and income. कुछ लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी चली जाती है। Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. और उनका जो शेयर है, उनका हिस्सा है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। Those at the bottom of the societies have very little to depend upon. Their income have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as the food, clothing, house, education and health. तो ये प्रॉब्लम होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटी नहीं देती है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम लेकर के आएंगे। आल्दो वह एक उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं कर सकते। इन रियल सेंस डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड ए सिचुएशन टू ग्रो। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन द सिटीजन देन हाउ दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दोज सिचुएशन। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर to be very successful in reducing economic inequality. In class 9 economic textbook, you have already studied about poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters, and no party will like to lose their votes. Yet, democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. So political parties को मालूम है कि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस कारण से उनकी समस्याओं को उनको ध्यान देना होता, उससे हट के वो नहीं जा सकते। The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich country even for food supplies. So it is a very bad situation that कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी हैं जहाँ जो गरीब कंट्रियाँ हैं वो अपने भोजन के लिए भी दूसरों के ऊपर अमीर देशों के ऊपर निर्भर है। तो ये एक बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं कहा जा सकता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इस मैटर पर फेल हो जाती है कि वह आर्थिक रूप से सबको समान बंटवारा कर सके। लेकिन अगर हम दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक देखते हैं तो वहाँ पर स्थिति और ख़राब होती है। वहाँ पर they are not taking, non-democratic country are not worried about your basic needs. Although डेमोक्रेटिक कंट्री में ये गवर्नमेंट मोरली रिस्पॉन्सिबल लेती है कि हम लोगों को जो सामान्य जीवन की चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर।